We know that education is must just to inculcate and imbibe the scientific approach in every human mind. We educate our students to become globally competent in all spheres of life, in technology, commerce, human values, etc. So, just I have gone through the profile of Sir that in spite of being an engineer and technocrat, you have some social values also, and you are trying your best to serve the nation by educating the students on different some important topics. Scientific approach is must just to remove the blasphemy, blind faith, and awaken the scientific approach in the minds of all students so that we can become in real sense human beings. In spite of giving your lectures on different topics at different places in India and abroad, your heart beats for the social service. Such man cannot live on the earth without service to the nation and humanity. Like you are social worker, you deliver your lectures and all activity cost free. This is great, eminent service to the nation and humanity. You are running, even though you are delivering your lectures cost free, you are serving the nation in so many terms that you are helping the students for competitive exams at your residence, like Gurukul system. Once again, we remind in our minds that in ancient ages, there was Gurukul system where Guru and Shishya learn and teach each other sitting together like a father and son. So in such manner, Sir had established Gurukul system not in particular, not in a formal sense, but in sense of humanity. You are imparting education of competitive examinations, preparing human beings, and in so many development of the capabilities and competencies in the students on communication skill, personality development, soft skill, career guidance at so many places. In real sense, we feel proud to find such a man of human values. You have value system of such an ideal person where theoretical values, artistic values, and social values have ranks in your social system. Society needs such type of personality in nation to serve the nation and build the nation of such human beings, such citizens who can become a successful person in their lives and serve the nation at the best. Sir, we feel proud. We extend our hearty welcome to you once again. We feel proud to have you among our students and just to listen uh, such a profound speech. Thanks, sir. You are once invited for the delivery of lecture. Good evening, all of you. I'm Santosh Takle. Today we will be talking on the lecture Others can switch my This topic is about understanding the universe and astronomy with scientific tools. That is called scientific temper or temperament. As I'm going to talk about complete universe, I'll be covering most of the vastness of the universe. So probably I need to use some conveyance, which is the correct example or iconic representation of 21st century's technological development or achievement. तो आपके सामने स्पेस शटल सिस्टम दिखाया गया है। आपके लिए ये कोई नया नहीं है, 21वीं सदी का यह अजूबा है और भारत और हमारे देश की टेक्नोलॉजिकल अचीवमेंट्स के दायरे में आता है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि इसका वजन कितना होता है, तो शायद बहुत सारे या कुछ बच्चों को ये पता नहीं होगा और ऐसे हालात में मेरा सवाल पूछने का उद्देश्य आपको इसका वजन पता है कि नहीं ये जानना नहीं, बल्कि इसके पीछे कुछ और इंटेंशंस है।
इंटेंशंस क्या है ये जानने के लिए पहले एक सिंपल सवाल में जाते हैं, और वो सिंपल सवाल ये है, क्या आपको मोटरसाइकिल का वजन पता है? आपको पता है कि मोटरसाइकिल अगर रास्ते पे गिर जाए तो उसको 1-2 लोग लगते हैं उठाने के लिए, जबकि उसका वजन हार्डली 100, 200, 300, ज्यादा से ज्यादा 400, 450 किलो हो सकता है। ऐसी मोटरसाइकिल 400 किलो की उठाने के लिए 1-2 लोग लगते हैं। तो अगर मैं आपको स्पेस शटल सिस्टम का वजन बताऊं तो वो तकरीबन 6 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख किलो तक भी जाता है। और स्पेस शटल सिस्टम क्या काम करता है ये बताने के लिए मेरी जरूरत नहीं है, फिर भी हमारे लेक्चर का ये हिस्सा है तो मैं अपडेट करना चाहूंगा कि स्पेस शटल सिस्टम मैंड मिशन की वजह से हमारे आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च होते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसी जगहों पे रिपेयर मेंटेनेंस करना है तो मैंड मिशन होते हैं। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट के लॉन्चिंग की वजह से ही हमारा मोबाइल फोन चलता है, हमारा टीवी चलता है, हवामान का अंदाजा बताया जाता है, और मिलिट्री सर्जिकल स्ट्राइक करने हैं तकलीफ देने वाले नेबरिंग कंट्रीज को तकलीफ देने के लिए, तो भी हमें आर्टिफिशियल सैटेलाइट और उसके ऊपर जो प्रणाली भेजी जाती है टेक्नोलॉजिकल, उसकी मदद लगती है। तो ऐसे ये 20, 22, 25, 30 लाख किलो की सिस्टम आसमान में प्रक्षेपित यानी लॉन्च करने के लिए और वहां उसका काम चलने के लिए क्या हमारी शारीरिक क्षमता या हमारी शारीरिक ताकत काम में आती है या हमारी बौद्धिक क्षमता काम में आती है? यहाँ पे सब लोग सही जवाब देते हैं कि ये हमारे बौद्धिक क्षमता का नतीजा है कि 21वीं सदी में इंसान ने स्पेस टेक्नोलॉजी में कामयाबी हासिल की। तो आप जब स्कूल कॉलेजेस जाते हो, गवर्नमेंट चाहती है कि सब पढ़े लिखे हो, तो ये जो 15 ग्रेजुएशन की डिग्री है एजुकेशन लेने के बाद मिलती है, वो सिर्फ सर्टिफिकेट नहीं है, बल्कि इन 15 सालों में आपके मस्तिष्क का विकास करने के लिए की गई जी जान से एफर्ट से, गवर्नमेंट की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, टीचर्स की तरफ से, और आप ऐसे हालात में से मेहनत करता है, उसे भविष्य में अपने खुद के भविष्य की ज्यादा चिंता करनी नहीं पड़ती, क्योंकि जिसका मस्तिष्क का विकास सही ढंग से हुआ हो वो जिंदगी में खुद के लिए छोड़िए, फैमिली के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए बहुत कुछ कर सकता है। तो यहाँ पे इस स्पेस शटल सिस्टम के उदाहरण से हमें ये तो जरूर पता चला कि बच्चा हो या बड़ा हो, हमें इंसान को जिंदगी में हमेशा ही हाउ टू थिंक इसके ऊपर ज्यादा जोर देना चाहिए, ना कि व्हाट टू थिंक। अगर आपको समझा नहीं होगा तो मैं बताना चाहूंगा कि बिल्ली के रास्ता काटने से 5 कदम पीछे जाना है कि 10 कदम पीछे जाना है, इस तरीके की सोच जो है वो व्हाट टू थिंक कैटेगरी में आती है। जबकि हाउ टू थिंक कैटेगरी का जीता जागता उदाहरण हम खुद इंसान है, जो बहुत सारे सवाल पूछते पूछते उस आदिम अवस्था से आज की उत्क्रांत और टेक्नोलॉजिकली सस्टेनेबल अवस्था में पहुंचे हैं। तो ये अगर आज का एक उदाहरण था, तो ये जो हाउ टू थिंक है, इसका सही मायने में अगर कुछ फाउंडेशन है तो उसे बोला जाता है वैज्ञानिक सोच। तो आपके सामने मैंने कुछ 4 पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपको पढ़ने हैं तो बाद में जब आप वीडियो जो आपका यूट्यूब लाइव हो रहा है वहां रिकॉर्डेड मिल जाएगा, तब पढ़ लीजिए। मैं इसका सार आपको बता देता हूं जो यहाँ लिखा है इन शॉर्ट में, कि वैज्ञानिक सोच एक ऐसी साइंटिफिक एविडेंस बेस्ड सोच है कि जिसके चलते हमें जिंदगी में मोर रैशनल यानी तर्क सुसंगत और इन्फॉर्म मतलब जानकारी युक्त डिसीजन लेने में मदद होती है। आज यहाँ जो बच्चे हैं, किसी ने सपोज साइंस करियर का सोचा, किसी ने आर्ट करियर का सोचा, और आगे जाके खुद को जिंदगी में जो करियर और मकाम हासिल करना है उसके बारे में बहुत डिटेल्ड में जानकारी होगी, तो उसके जो भी भविष्य के निर्णय होंगे उनको हम बोलेंगे वेल इन्फॉर्म चॉइसेस, मतलब ज्यादा जानकारी युक्त उसके लिए गए निर्णय या उसको मिले चॉइसेस। ऐसे हालात में मैं जो आपको दाखिला दे रहा था वैज्ञानिक सोच का, ये वैज्ञानिक सोच सही मायने में इंसान को इस तरीके की अवसर और चॉइसेस प्रदान करती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये भारतीय संविधान में लिखा है कि क्लॉज नंबर 51A(H) ये कहता है कि इट इज अ फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन टू इनकलकेट, फोस्टर, प्रमोट साइंटिफिक टेम्पर और स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म एज वेल एज द ह्यूमैनिज्म।
मतलब इंसानियत को भी मद्देनजर रखते हमें शायद वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये हमारा मूलभूत कर्तव्य है एक भारतीय होने के नाते। इतनी जरूरी चीज जो भारत के लिए पूरे दुनिया की इंसानी आबादी के लिए जरूरी है, वो सोच इतनी सही मात्रा में होते, इतनी जरूरी होते हुए भी ज्यादा मात्रा में हमारे आसपास दिखती क्यों नहीं? इसके कारण यहाँ लिखे हैं, जो एक समराइज फॉर्म में आपको समझ में आना चाहिए कि हमें बचपन से जो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड या फिर कोई भी संस्कार मिलते हैं, वो हमारे दिमाग में इस तरीके से बैठ जाते हैं कि शायद आगे जाके उनसे बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आजकल लोग पढ़े लिखे जरूर हैं, बट सही मायने में साक्षर होने के साथ उनके अंदर जो समझदारी और वैज्ञानिक सोच आनी चाहिए वो इतनी दिखती नहीं। नहीं तो ये हालात आज नहीं होते थे जो यहाँ मैंने आपके सामने लिखे। यहाँ लिखा गया है कि आज भी बहुत सारे लोग गलत चीजों को गलत बोलोगे तो उसमें कहीं ना कहीं उनकी भावनाएं, धर्म, इनको घुसा के बोलते हैं कि भाई इससे हमें तकलीफ हो रही है, तो आपको ये सब चीज से बाहर निकलना होगा। क्यों? इसका उदाहरण यहाँ पे मैं एक उदाहरण के तौर पे एक वैज्ञानिक का फोटो आपको दिखा रहा हूँ। उनका नाम है गैलीलियो। आधुनिक विज्ञान के जनक बोला जाता है, बट ज्यादा सटीक बैठता है कि वो आधुनिक ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी के जनक हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में जो उनको टेक्नोलॉजी मालूम हुई थी उसके सहारे ये एक टेलीस्कोप बनाया और उस टेलीस्कोप से आसमान का अवलोकन किया। ये मेरे पास वाला टेलीस्कोप है, कभी आप तरफ में आ पाऊंगा तो आपको जरूर वो सारी चीजें दिखाऊंगा जो गैलीलियो ने उस जमाने में 400 साल पहले समाज के बहुत सारे लोगों को दिखाई। जैसे कि यहाँ आपको सामने दिख रहा है, आपको चंद्रमा दिख रहा है, और चंद्रमा के नीचे क्या है ऐसा मैं पूछूं तो शायद आप बोल देंगे कि ये कोई स्टार है। मैं नीचे की चीज क्या है पूछूंगा तो आप जरूर बोलोगे ये शायद मून की यानी चंद्रमा की कलाएं हैं। पर आपके दो जवाब गलत हो गए, कारण मैं ही हूं क्योंकि मैंने आपको सही जानकारी नहीं दी। पहला चंद्र था, नीचे वाला स्टार स्टार नहीं था, वो वीनस नाम का प्लैनेट है जो कभी आपको सूरज ढलने के बाद या कभी सूरज उगने के पहले दिखता है। उस शुक्र को जब गैलीलियो ने 400 साल पहले टेलीस्कोप से देखा तो इस तरीके की शुक्र की कलाएं गैलीलियो को दिखी। ये फोटो हाल ही में लिया हुआ है, 2010 में किसी टेलीस्कोप से लिया हुआ ये फोटो इंटरनेट से डाउनलोड करके आपके लिए रखा है। तो ये वीनस की फेजेस है। अभी आप खुद को टटोल के देखिए कि कितने लोगों को पता था कि वीनस को, मर्क्यूरी को भी चंद्रमा की तरह फेजेस होती है। आगे जो आपको दिखाएंगे वो है जुपिटर, बृहस्पति। इसके ऊपर 4 जो बिंदु दिख रहे हैं वो उसके नेचुरल सैटेलाइट्स है। आप सबको पता है कि तकरीबन 60-70 जो लिस्टिंग है अप्रोक्सीमेट वो है जुपिटर के चंद्रमाओं की। यहाँ 4 दिख रहे हैं वो गैलीलियो ने 400 साल पहले देखे थे। शायद आपने देखे कि नहीं वो खुद को पूछ के देखिए। ये सैटर्न है, और सैटर्न की रिंग्स जो आपको यहाँ दिख रही है वो भी गैलीलियो ने 400 साल पहले देखी थी। आपने देखी कि नहीं मुझे नहीं पता। ये सूरज है, सूरज के ऊपर के काले धब्बे मतलब सन स्पॉट जो कम टेम्परेचर जोन्स है उसकी भी जानकारी गैलीलियो को थी। इतनी सारी जानकारी के बावजूद भी उसने बहुत सारी और भी डिस्कवरीज की, और सूर्य केंद्रित सिद्धांत जो उसके कुछ साल पहले कोpernicus ने यूरोप में बताया था उसको भी दुनिया के सामने प्रूफ के साथ रखने का काम गैलीलियो ने किया। आप यहाँ पे जरूर बोल सकते हो कि इससे 1000 साल, इनके 1000 साल पहले भी हमारे भारतीय वैज्ञानिकों को सूर्य केंद्रीय सिद्धांत के बारे में मालूम था। यू आर एब्सोल्युटली राइट। बट जबकि हम अभी गैलीलियो की बात कर रहे हैं तो गैलीलियो के पास जो जानकारी थी वो कोपरनिकस के तरफ से आई हुई थी। इसलिए मैंने ये बोला कि सूर्य केंद्रीय सिद्धांत जो कोपरनिकस ने बताया था वो गैलीलियो ने प्रूव करने का काम किया। आप सोच रहे होंगे कि इतनी सारी डिस्कवरी 400 साल पहले किसी भी रिसोर्सेस के अवेलेबल ना होते हुए भी गैलीलियो ने की तो शायद उनको बड़ी इज्जत मिली होगी, अप्रिसिएशन मिला होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ। गैलीलियो को 16 साल जेल में डाला गया। आखिरी 5 साल उन्होंने ऑलमोस्ट अपने आंखों की रोशनी गंवाई दी थी। ऐसे हालात में गैलीलियो मर गए और मरने के बाद उनके नाम का स्टैचू भी नहीं बना। ऐसा क्यों हुआ? इसका जवाब सिंपल है कि उस जमाने में से लेके अब तक बहुत सारे लोग आज भी
ऐसी विज्ञान से भरी सोच वाली बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करते जिनके साइंटिफिक एविडेंसेस होते हैं। बट ऐसी बहुत सारी बातें जिनके ऊपर कोई साइंस नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंसेस नहीं है, ऐसी चीजों में विश्वास करते हैं। इस सब चीज का तकलीफ सिर्फ गैलीलियो को नहीं हुआ, एक ब्रूनो नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने भी कुछ ऐसी ही बात की कि रात के आसमान में दिखने वाले सारे तारे सूरज ही हैं, तो उनको जिंदा जलाया गया। मतलब ये है कि लोगों ने पुराने जमाने में मेहनत की, उन्होंने एक नींव रखी, जिसको बोल सकते हैं आप ज्ञान से विज्ञान और विज्ञान से तंत्र ज्ञान आने के लिए जो इंटरमीडिएट स्टेप थी वो उन्होंने बनाई। उनको तकलीफ हुई, बट हमारा भविष्य उज्जवल हो गया, क्योंकि आज हमारे घर पे सुबह से लेके शाम तक और पैदा होने से मरने तक हम जिस साधन सामग्री का, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, वो इन सब महान सोच के कारण ही आ सका। और इसीलिए आप सबको भी आज मेहनत करनी है, ताकि आगे जाके आप भविष्य के लोगों के काम आ सके। और जो पुराने जमाने में लोग मेहनत करके गए, उनको सही मायने में श्रद्धांजलि अर्पित कर सके। तो ये हालात आप समझ चुके हैं, तो यहाँ जानने की कोशिश करते हैं कि 21वीं सदी में अगर इंसान सही मायने में विज्ञान का इस्तेमाल ही करता है, तो वैज्ञानिक सोच क्यों नहीं रखता। मैंने बोला था कि इस तरीके के संस्कार बचपन में हम पे नहीं होते, इसका असर। तो ये तो सबको पता है कि मैं जो अभी आपके सामने चित्र रखा है, जो इस यूनिवर्स का, ब्रह्मांड का, कायनात का ऑफिशियली साइंटिफिकली ओरिजिन कैसे हुआ, इसका एक्सप्लेनेशन देता। बिग बैंग बोलता है कि द होल यूनिवर्स मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम सच अ स्मॉल सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यू ईयर्स बिफोर। अगर मैं आपको बोलूं कि इतने से ऊर्जा के स्रोत से पूरा ब्रह्मांड निर्माण हुआ, तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको समझ में तो आ पाएगा, बट सही मायने में समझ में उसको नहीं आएगा जो बगैर सोचे हाँ में हाँ मिला। तो समझने की कोशिश करते कि जो मैं बोला वो आपको सही लगता है। सोचिए, आपके स्कूल कॉलेज के बगल में कोई पहाड़ है और उसको हटा के आप वहां पे एक टेलीस्कोपिक ऑब्जर्वेटरी सेटअप करना चाहते हो, ताकि भविष्य की जनरेशन के लिए ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली अवेलेबल रहे। अभी पूरा पहाड़ हटाना है तो बड़ा मुश्किल काम है, और ना ही पूरे पहाड़ को हम दबा दबा के एक टेनिस बॉल बना सकते हैं। तो पूरे पहाड़ को अगर टेनिस बॉल इतना हम नहीं बना सकते हैं, ऐसा आपको लग रहा है, तो इसमें गलत कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली आज के डेट पे तो सही। बट मैं कुछ अलग बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ आपके यहाँ के एक पहाड़ की बात नहीं कर रहा हूँ, ना ही मैं आपके सिटी की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं आपके स्टेट की बात कर रहा हूँ, ना ही मैं इंडिया की, अर्थ की या सोलर सिस्टम की बात कर रहा हूँ। मैं पूरे कायनात में, ब्रह्मांड में जितने भी सोलर सिस्टम है, उन सब की बात कर रहा हूँ और कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कुछ इतने से ऊर्जा के स्रोत से बाहर आए। जो सही मायने में फिजिक्स के कदरदान नहीं है और उन्होंने ज्यादा फिजिक्स नहीं पढ़ी है, उनको ये समझ में आना थोड़ा मुश्किल है। तो आज की डेट पे मैंने जो बोला उसी को मैंने कॉन्ट्रडिक्ट किया, सिर्फ ये समझाने के लिए कि आप जितना सोचते हैं उतना साइंस को समझना आसान नहीं है। साइंस कोई वो चीज नहीं है कि किसी ने बोला 4 बार ये चीज कर दो तो तुम्हारे तिजोरी में इतने लाख बढ़ जाएंगे, या ये 5 बार स्पीकर पे ये चीज बोल दो तो तुम्हारे परसेंटेज 80 से सीधे 90 हो जाएंगे। इतनी सरल और आसान ज्ञान से संबंधित चीजें नहीं होती है। नहीं तो 5वीं 6ठी क्लास के बच्चों को 5-10 किताबें क्यों पढ़नी पड़ती। एक किताब में जो लोग बोलते हैं कि सब कुछ लिखा छपा पड़ा है, वो कितना गलत है, ये इसी उदाहरण से साबित हो सकता है। सो लेट्स गो फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तो कितने साल पहले हुआ। यहाँ आपको ये चित्र दिखाया गया है, जिसमें इसका सटीक जवाब लिखा गया है 13.8 बिलियन ईयर्स, मतलब तकरीबन 14 अरब साल पहले ब्रह्मांड का निर्माण जो है ऊर्जा के स्रोत से हुआ। 14 अरब का मतलब होता है 14 के ऊपर 9 जीरो देना, मतलब 1400 करोड़। अब ये 1400 करोड़ साल कितने पुराने हैं, ये जानने के लिए हमें शायद आपका जो बचपन का दोस्त है डोरेमोन, उससे टाइम मशीन लेके समय में पीछे जाना पड़ेगा। तो समय में पीछे जाएंगे तो पहली स्टेज तो हम हिंदुस्तानियों के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है भारत देश का पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता पाना। आप सबको पता है कि 1947 में जो हमको इंडिपेंडेंस मिला, तकरीबन 75 ईयर्स बिफोर, वो कोई मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा से फ्री में हमको नहीं मिला।
इसके लिए कितने लोगों ने जान की कुर्बानी दे दी। कोई शांति की राह पे था, कोई क्रांति की राह पे था। उद्देश्य एक ही था कि देश को किसी भी हाल में स्वतंत्र करना है। हुआ भी है, क्योंकि जो चीज आप मेहनत से और प्लानिंग से और डेडिकेशन से करोगे वो आपको हासिल होती ही। बट उसी चीज को अगर आप थोड़ा डिटेल्ड में सोचेंगे तो सोचिए, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जिन्होंने हमारा संविधान बनाया, जिन्होंने इतनी सारी अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम देश के लिए बनाई जो आज भी सही फील होती है, क्या ये लोग सब साइंटिस्ट, डॉक्टर, इंजीनियर थे? नहीं। बहुत सारे लोग बीए, बीकॉम, उसी फील्ड में आगे जाके पीएचडी किए हुए लोग थे। और आज के बच्चे जब बोलते हैं कि बीए, बीकॉम, बीएससी करके कुछ फायदा नहीं, नहीं मिलती, तो इसमें सरकार की या टीचर्स की या एजुकेशन सिस्टम की कम गलती है। जो खुद नौकरी नहीं पा रहा है उसकी ज्यादा गलती है, ये आपको सच्ची मुच्ची समझना होगा। अगर यहाँ आप सिर्फ 75 ईयर्स पीछे जाके ये वाकया देखा, तो अभी हम चलेंगे 175 साल। 175 साल पीछे जाओगे तो देखेंगे कि स्कूल कॉलेज तो है, बट उस स्कूल कॉलेज में एक फैक्टर मिसिंग है, वो 50% आबादी को रिप्रेजेंट करने वाली महिला है। 175 साल पहले किसी ने सोचा कि भाई महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार मिलना चाहिए, ताकि देश की, समाज की तरक्की दिन दुगनी रात चौगुनी हो, जो आज भारत में हो रहा है। हमारे आजू बाजू के देशों में अभी भी ये रिवाज नहीं है कि सबको इक्वल मानते हुए पढ़ाई लिखाई की अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, इसलिए बेतुकी चीज पे वहां पे महिलाओं को गोली मारने का भी काम करते हैं। तो ऐसा काम भारत देश में किसने शुरू किया, ये मैं पूछूं तो आप में से ही 50% से ज्यादा लोगों को शायद पता ही नहीं हो। तो मैं ही बता देता हूँ, 1948 में जब सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इन्होंने पुणे में महिलाओं की शिक्षा के लिए काम शुरू किया, तो पहला झटका तो उनको घर से मिला, घर से निकाल दिया उनको। फिर लोगों ने इतनी तकलीफ दी कि गोबर मारा, कीचड़ मारा, फिर भी उन्होंने वो अच्छा काम चालू रखा। तो आज जाके देश में कोई कल्पना चावला, कोई किरण बेदी और आप जैसी, जहाँ अभी भी क्लास में मैं देख रहा हूँ बहुत सारी गर्ल्स ही है। तो ये सबको याद रखना चाहिए कि हमारे लिए पुराने जमाने में किसी ने कुछ किया तो हम सुखमय जीवन जी पा रहे हैं, तो आपको भी भविष्य के पीढ़ियों के लिए कहीं ना कहीं मेहनती और लायक प्रामाणिक बनना होगा। मैं अगर सावित्रीबाई फुले ने वो फाउंडेशन नहीं रखा होता तो मालूम नहीं आज हम कहाँ होते। तो ये समझना जरूरी है कि गैलीलियो को तकलीफ हुई, सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, इनको तकलीफ हुई, तो हमें फ्रीडम देने वाले देश प्रेमी नागरिकों को तकलीफ हुई, बट उनके चलते आज हमारे पास बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। तो हमें भी इसके लिए, भविष्य की पीढ़ियों के लिए योगदान देना चाहिए। लेट्स गो फर्दर। अगर मैं बोलूं कि मैं आज से तकरीबन 300 साढ़े 300 साल पीछे जाऊं, तो मैं एक ऐसे महान राजा की याद आपको दिलाना चाहूंगा जिन्होंने 350 साल पहले भी आम आदमियों के लिए और विशेषकर महिलाओं की इज्जत करना सारे दुनिया को सिखाया। मैं बात कर रहा हूँ छत्रपति शिवाजी महाराज की। मैं उसी डिस्ट्रिक्ट में हूँ जिसका नाम है रायगढ़, महाराष्ट्र, वही जो आपसे सिमिलर है, बट मैं यहाँ महाराष्ट्र में हूँ। तो आप समझ सकते हो कि हमारे यहाँ ऐसे राजा होके गए जो सिर्फ महाराष्ट्र को नहीं, भारत को नहीं, पूरे मानवता को रिप्रेजेंट करते हैं कि सही राजा को कैसे होना चाहिए। आई होप कि आपने उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा। तो अभी मैं अगर 350 साल पीछे जाने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज जो एक न्यायी राजा थे उनको मिल सकता हूँ, तो उसी समय के थोड़ा पहले मैं कहीं सवाई जयसिंह को मिल सकता हूँ जिन्होंने जंतर मंतर बनाए भारत में, और सही मायने में 350 साल पहले भी हमारे राजाओं को तक एस्ट्रोनॉमी का ज्ञान था, सटीकता से ये रिप्रेजेंट किया। अभी मैं 600 साल पीछे जाऊंगा, 14वीं सदी में जाऊंगा, तो पंजाब में मुझे गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक जी मिलेंगे, जो भी अन्याय के खिलाफ लड़ रहे थे और सिखिज्म की शुरुआत हुई। 1400 साल पीछे जाऊंगा और मक्का मदीना में जाऊंगा तो मुझे पैगंबर साहब मिलेंगे, जिन्होंने कहीं ना कहीं आम आदमी के लिए शांति अमन निर्माण करने के लिए जिंदगी भर कहीं ना कहीं किसी से फाइट करते रहे, और इसी के लिए इस्लाम को रिलीजन ऑफ पीस बोला जाता है। यही काम 2000 साल पहले जेरूसलेम के आसपास जीसस क्राइस्ट कर रहे थे। काउंट करते करते हम 2020 साल पीछे आ गए, अभी हम जीरो तक पहुंच गए। जीरो के पीछे जाएंगे तो हम बोलेंगे बीसीई। तो सोचिए, मैं जीरो के पीछे चला गया तकरीबन 260 साल, मतलब आज से 2280 साल पीछे जाऊं और कहीं मैं उड़ीसा में घूम रहा हूंगा तो मुझे मिलेंगे सम्राट अशोक।
जो कलिंगा के युद्ध में जीत तो गए, बट वहां हुई जीवित हानि को देख के उनको खुद को लगा कि अहिंसा परमो धर्मः, तो अहिंसा को उन्होंने अपनाया। उनके पीछे जाएंगे तो हमें चंद्रगुप्त मौर्य, आचार्य चाणक्य मिलेंगे। उनके थोड़ा पीछे आसपास ही पंजाब प्रांत में आपको कहीं ना कहीं अलेक्जेंडर द ग्रेट और पोरस मिलेंगे। 2400 साल पीछे जाएंगे तो आपको ज्योमेट्री वाले पाइथागोरस। 2600 साल पीछे जाएंगे तो आपको कहीं ना कहीं मतलब आपके नेपाल रीजन के आसपास आपको गौतम बुद्ध और महावीर तीर्थंकर जैन मिलेंगे। तो ये तो हो गई 2600 साल पुरानी कहानी। इसमें 800 1000 साल मिला दो तो कहीं महाभारत रामायण के किरदार मिल सकते हैं, या फिर कोई पेड़ के नीचे बैठ के ये कहानी लिखा हुआ पा सकते हैं। इससे भी पीछे जाएंगे और आज से 3800 साल पीछे जाएंगे तो भी आपको दिखेगा कि भारतवर्ष में लोग सिर्फ और सिर्फ फिलोसॉफिकल बात नहीं करते थे, गणित, विज्ञान और खगोल विज्ञान की काफी जानकारी रखते थे। इसका डॉक्यूमेंटिव एविडेंस है वेदांग ज्योतिष। वेदांग मतलब वेदों का अंग, और ज्योतिष मतलब राशि भविष्य नहीं। ज्योतिष मतलब आसमान के खगोलीय ज्योतियों का ज्ञान, जो हमें समय के मापन में, काल मापन में, विशेषकर बारिश कब होगी, खेती बाड़ी का टाइम टेबल क्या होगा, नदियों में बाढ़ कब आएगी, इस तरीके की जानकारी के लिए बहुत उपयुक्त था। उसकी जानकारी वेदांग ज्योतिष के ऋचाओं में या श्लोकों में मिलती है, और आज की डेट पे भी वो काफी मात्रा में स्टिक पाई जाती है। इसके ऊपर बड़ी सी किताब आपको मिल जाएगी। एनीवेज, अगर मैं उससे भी पीछे चला जाऊं 1000 साल, मतलब तकरीबन 5000 साल पीछे, तो आप सबको पता है कि मोहनजोदारो हड़प्पा सिविलाइजेशन यही कहती है कि भारत में तभी भी सिविलाइज लोग रहते थे। अगर 5000 साल पीछे जाने में मैंने 5 मिनट लगा दिए, मुझे जाना है 14 अरब साल, तो आप समझ ही सकते हो कि मुझे स्पीड बढ़ाना होगा। मैंने 5000 को 10 से मल्टीप्लाई करके 50,000, फिर 10 से मल्टीप्लाई करके 5-5.5 लाख साल पीछे की छलांग लगाई, तो मुझे दिखेगा कि उतने पुराने साल पहले भी महाराष्ट्र में, भारत में एक मिटियोर गिरा, वो जाके सीधा टकराया महाराष्ट्र के बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के लोनार नाम की जगह पे, और वहां पे उसने निर्माण किया लोनार लेक, जो पूरा भारत पढ़ता है। सीबीएसई का सिलेबस हो, एससीएसटी का सिलेबस हो, स्टेट बोर्ड का सिलेबस हो, सारे सिलेबस में लोनार लेक है। बट पूछेंगे कि लोनार लेक कितने लोगों ने फिजिकली विजिट किया, ऐसे जवाब आते हैं कि जैसे लाखों में एक। तो आप समझ सकते हो कि जब तक आप साइंस सेंटर, आर्कियोलॉजिकल साइट, ग्रेट फोर्ट्स और ये जो विज्ञान के तीर्थ क्षेत्र है जैसे लोनार लेक जैसी जगह है, ऐसी जगह नहीं विजिट करोगे तो बहुत मुश्किल है कि आप में थेरोटिकल एजुकेशन के साथ प्रैक्टिकल समझदारी भी आए, जो जरूरी है। दुनिया भर के साइंटिस्ट अगर लोनार रिसर्च के लिए आते हैं तो आपको भी कभी तो वक्त निकाल के वहां विजिट करना चाहिए। जरूरी बात यह है कि 5-5.5 लाख साल पहले बना मिटियोरिटिक लेक या फिर वोल्केनिक इरप्शन से बना लेक, लोनार लेक आपका इंतजार कर रहा है। इससे भी पीछे जाएंगे तो पृथ्वी तो मौजूद होगी, सिर्फ पृथ्वी के ऊपर कुछ ऐसे जीव होंगे जो हम सबको पसंद है, नहीं तो हम डायनासोर की फिल्में क्यों देखते। तो ये जो डायनासोर है ये पृथ्वी पे कब आए कब गए ये पूछेंगे तो बहुत सारे लोग इधर उधर देखने लगते हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि 20 करोड़ साल पहले उत्क्रांति के साइकिल में डायनासोर पृथ्वी पे आए और तकरीबन 6.5 करोड़ साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए। 20 में से 6.5 गए तो 13.5 करोड़, मतलब 1350 लाख साल पृथ्वी के ऊपर डायनासोर की जनरेशन शायद थी। इंसान कब से है? इंसान तकरीबन 20, 25, 30, 40, 50, 60 लाख साल से होने के चांसेस है, जब वो इवोल्यूशन के साइकिल के बहुत ही अर्ली स्टेज में था। तो 50-60 लाख साल के खुद के इंसान ने जो धार्मिक अनुष्ठान और धर्मस्थल बनाए खुद को बचाए रखने के लिए, क्या 1350 लाख साल अपना अस्तित्व बचाने के लिए डायनासोर की इनकी जरूरत नहीं पड़ी? 100% एविडेंसेस तो यही कहते हैं कि उनको जरूरत नहीं पड़ी। इंपॉर्टेंट ये है कि डायनासोर थे, वो पृथ्वी पे थे। पृथ्वी और सूरज 450 करोड़ मतलब 4.6 बिलियन ईयर बिफोर इस ऊर्जा के गोले से निर्माण हुए। तो भाई ये ऊर्जा का गोला जिससे ये ब्रह्मांड निर्माण हुआ वो 1400 करोड़ साल पहले हुआ। ये बताने के लिए ये चित्र मैंने इतनी देर आपके सामने रखा है और अभी बता रहा हूं। प्लीज ढूंढिए क्या आपको इसमें कोई ऊर्जा के अलावा, नेचर के अलावा कोई सुपर नेचुरल चीज दिख रही है? कोई इसमें भूत, पिशाच, डायन दिख रहा है? वैज्ञानिक सोच मतलब विज्ञान का इस्तेमाल करना नहीं है,
वैज्ञानिक सोच मतलब सारी अवैज्ञानिक चीजों को ठुकराना है। तो अवैज्ञानिक चीजों में भूत भी आता है और उससे रिलेटेड सारी नॉनसेंसिकल स्टोरीज आती है, और अंगूठी और ताबीज भी आता है जो आपका भाग्य बदलने वाला है। ये आपको जब तक नहीं समझेगा तब तक आप जैसे लोगों के एपिसोड क्राइम पेट्रोल पे आते रहेंगे और शायद हमें देखने पड़े। एनीवे, अगर हम ब्रह्मांड के निर्माण में नेचुरल प्रक्रिया को समझ पाए तो सूरज के निर्माण की नेचुरल प्रक्रिया तो डॉक्यूमेंटेड है। सिर्फ डॉक्यूमेंटेड नहीं है, इसके फिजिकल एविडेंसेस आज भी नेब्यूला में, स्टेलर नर्सरी में, जैसे ओरायन नेब्यूला है, पाए जाते हैं। आप अगर इसके बारे में पढ़ते हो इंटरनेट पे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ते हो तो अभी समझ लो। आपके सामने जो चित्र दिखाया, जो बचपन से आप देख रहे हो, वो सोलर सिस्टम की ओरिजिन की बात करता है कि हाइड्रोजन के बड़े से ऊर्जा के गोले से इस सोलर सिस्टम का जन्म हुआ। जैसे हमारे घर पे एक एलपीजी सिलेंडर होता है, तो 14 किलो का एलपीजी सिलेंडर आग निर्माण करने की मतलब ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया से ऊर्जा का निर्माण करता है और 3 महीने का हमारा खाना आराम से बना देता है सीमित फैमिली का। सूर्य के ऊपर 1 सेकंड में 14 किलो हाइड्रोजन नहीं बल्कि 600 बिलियन किलोग्राम हाइड्रोजन इस्तेमाल होता है। इसके इस्तेमाल से E इज इक्वल टू mc स्क्वायर से एटॉमिक फ्यूजन रिएक्शन से जो ऊर्जा बनती है उसका 1 अरब से भी कम हुआ हिस्सा 15 करोड़ किलोमीटर क्रॉस करके पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ऐसे हालात में भी पृथ्वी के ऊपर औसतम और एवरेज या बोल सकते हो मैक्सिमम पर स्क्वायर मीटर 1400 वैट ऊर्जा पहुंचती है। आपके घर की ट्यूबलाइट 40 वैट होती है, आपको कंपैरिजन समझ में आ जाएगा। ऐसी ऊर्जा हम मिलती है, हम उसको सही ढंग से कन्वर्ट या यूज नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें बाकी एनर्जी सोर्सेस के पीछे दौड़ना पड़ता है। ऊर्जा के कन्वर्जन के लिए चाहिए टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी के विकास के लिए दिमाग और पैसा। आज की डेट पे बहुत सारे डेवलपिंग कंट्रीज के पैसे और दिमाग कई धर्म स्थलों की लाइन में लगे हुए हैं। जब तक वो वहां से बाहर नहीं आएंगे और सही मायने में अपने पसंदीदा कार्य क्षेत्र में जाके अपने दिमाग का सही इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ये तकलीफ हम पूरे देश को नहीं पूरे मानवता को सहनी पड़ेगी। बट ये टेक्नोलॉजी का पार्ट भूल जाइए। आज मुझे सर ने इतना देर तक मेरे बारे में बोला, कितने लोगों ने सुना मुझे नहीं मालूम, बट जरूरी चीज है कि मेरी बड़ी इज्जत है भारत में और पूरी दुनिया में, क्योंकि एक मैं न्यूक्लियर साइंटिस्ट और एक न्यूक्लियर से जुड़ा साइंटिफिक व्यक्ति जो वैज्ञानिक सोच भी साथ में रखता है, उसकी इज्जत लोग करते हैं। ये आपने सर के मेरे एक्सप्लेनेशन के बारे में, सर ने जो मेरे बारे में बोला उसको देख के समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं न्यूक्लियर फिशन नाम की रिएक्शन से एसोसिएटेड हूँ। कंट्रोल्ड तरीके से चलाए तो लाखों करोड़ों इस्तेमाल है, पीसफुल यूजेस ऑफ एटॉमिक एनर्जी। इसके ऊपर तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे, उसी जमाने में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुआ था। आज तो उनके बाद डिकेड्स गुजर जाने के बाद तो बताने की जरूरत नहीं कि इसके ऊपर 10 घंटे भी लेक्चर दिया जा सकता। जरूरी चीज है कि वही चीज अनकंट्रोल तरीके से हो तो हिरोशिमा नागासाकी हो सकता है। बट इसी का एक अपर ग्रेड वर्जन है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूजन, जो सूरज के ऊपर होता है। इस टेक्नोलॉजी से परे तो इस चीजों में विश्वास रखते हैं कि सूरज के निर्माण के समय जो मिट्टी हवा वायु के गोले निर्माण हुए, उन गोलों में ये क्षमता है कि वो आपका भाग्य बदलती या बिगाड़ दे, आपके जीवन में शांति अशांति निर्माण करे, और उनके नाम से ताबीज अंगूठी या रस्सियां बांधते घूमते रहते हैं। और उनको बोल दो कि ये सब काम नहीं करता तो मेरा तो सुनेंगे नहीं। बट ऐसे महान व्यक्ति का कि जिनको पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया जिनका लोहा मान चुकी है, ऐसे व्यक्ति के नाम से हम 12 जनवरी को अगर नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट कर सकते हैं, तो उन्होंने कही हुई अहम बात कि ह्यूमन बीइंग्स आर द आर्किटेक्ट ऑफ देयर ओन डेस्टिनी, इंसान उसके भाग्य का खुद निर्माता है, ये स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। तो क्या हमें उनपे ये बात को समझने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? उनकी ये बात को समझना बहुत आसान है। आप अपनी जिंदगी करके देखो और आपको किसी के भी सुपर नेचुरल सपोर्ट की जरूरत नहीं लगेगी, सब नेचुरल सपोर्ट से ही आगे बढ़ते हैं। तो स्वामी विवेकानंद जी ने जो पते की बात की उसका उदाहरण हम लेते हैं। आज से 80-90 साल पीछे चलते हैं, कहीं तमिलनाडु में रामेश्वरम के आसपास पहुंचेंगे तो हमें दिखेगा एक बच्चा मेहनत कर रहा था, घर की फाइनेंशियल कंडीशन को सपोर्ट करने के लिए न्यूज़पेपर तक बेच रहा था, बट एक्सक्यूजेस नहीं दे रहा था कि मुझे पढ़ने के लिए तकलीफ हो। पढ़ते गए बीएससी की, इंजीनियरिंग की, फाइटर प्लेन का पायलट बनने गए तो कुछ कारणवश सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो बंदूक उठा के आतंकवादी भी नहीं बने,
ना ही माँ बाप को गाली दी, ना टीचर्स को गाली दी, ना सरकार को गाली दी, ना सुसाइड किया। इतनी मेहनत की उसके बाद भी डिमोरलाइज न होते हुए कि आगे जाके डीआरडीओ में सिलेक्शन हुआ। गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने के बाद इतनी समय सूचकता रखी, इतना डेडिकेशन रखा कि आगे जाके मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहलाए, फिर चीफ साइंटिफिक एडवाइजर बने, फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। और मेरे ख्याल से मैं तो मरते दम तक बोलने वाला हूं कि डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जैसा प्रेसिडेंट भारत को मिलना थोड़ा मुश्किल। आप भी यही सोचते हो, मुझे पता है। उनके बारे में जब भी हम सोचते हैं तो सिर्फ उनकी महानता, उनके विचार आचार से संबंधित चीजों के बारे में ही हमारे दिमाग में विचार आते। क्या कभी हम उनके जात के बारे में, धर्म के बारे में, भाषा के बारे में, उनके कलर के बारे में सोचते हैं? नहीं सोचते, क्योंकि महान लोगों का जीवन ही सही मायने में आम आदमी के लिए एक तरीके से जीवन भर का संदेश है। ये समझने वाले लोग अपने दोस्तों में, परिवारों में, फ्रेंड्स में, नेबर्स में कहीं ना कहीं जात धर्म भाषा से ज्यादा ही सोच डीप में लगाते हैं। तो आपको ये समझना होगा, जिंदगी में ऊपर उठना है तो पहले आपको एक इंसान बनना पड़ेगा जिसकी एक ही आइडेंटिटी है कि वो भारतीय है, और वो मरते दम तक भारतीय रहे और भारत की सेवा करे, और उसी कारणवश वो इंसानियत की भी सेवा करे। तो ये अगर आपके समझ में आया कि जिस तरीके से इन महान लोगों ने उदाहरण रखा समाज के सामने, धार्मिक होते हुए भी, कि धर्म का झूठा प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, धार्मिकता से आपके अंदर सही मायने में इथिक्स, जो वैल्यू एजुकेशन में पढ़ाए जाते हैं वो आने चाहिए। तो इनको यहाँ समझ के हम बढ़ते हैं आगे कि नेचुरल प्रक्रिया से ब्रह्मांड का निर्माण, नेचुरल प्रक्रिया से सूरज का निर्माण हुआ, तो क्या नेचुरल प्रक्रिया से ही बेजान सी पृथ्वी के ऊपर इतने हैंडसम ब्यूटीफुल इंसान आए? जवाब तो हाँ ही है। बट आप अगर बोलोगे लोगों को कि डार्विन नाम के साइंटिस्ट ने 5 7 10 साल घूम घूम के जानकारी बटोरी और फिर कंक्लूजन निकाला कि देयर इज कंटिन्यूअस चेंज इन दी स्पेसीज, जीवों में बदलाव आता रहता है, और ये बदलाव जो आता है उसी के कारण शायद कभी बंदर से एप और एप से इंसान बने। अब ये ऐसे भी लोग मिल सकते हैं जो ये जरूर पूछेंगे कि अगर हम जंगलों में जाएंगे और वहां के बंदर पकड़ के लाएंगे, पिंजरे में रखेंगे, उनको खाना पीना खिलाएंगे, शैम्पू से नहलाएंगे, तो क्या उनके इंसान बन जाएंगे? तो उनको आपको ये बोलना पड़ेगा कि 5 10 दिन बाद ना ही आप उनके बाल झड़ते देखोगे, ना 5 महीने बाद उनकी पूंछ झड़ते देखोगे, ना साल भर में वो खुद बोलेंगे कि मुझे कपड़े दे दो स्कूल कॉलेज जाना। तो उत्क्रांति जो है मेरी, मुझे आई होप कि आपको मेरा आवाज सुनाई दे रहा है। जी सर। ठीक 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 ठीक। नहीं, बीच में मुझे कॉल करते रहते हैं लोग, तो वो उससे नेटवर्क डिस्टर्ब होता है, ऐसा कभी कभी लगता है। एनीवे, मैं ये बात कर रहा था कि यहाँ समझने की बात ये है कि सपोज उत्क्रांति के माध्यम से बंदर जैसे प्रजाति से एप, एप से इंसान, तो बंदर कहाँ से आए? ऐसे ही किसी मैमल, सरीसृप, रेंगने वाले सस्तन प्राणियों से आए, ऐसा मान लो। तो भी पीछे जाएंगे तो सवाल ये जरूर उठता है कि बेजान जीवों से, बेजान चीजों से जीव कहाँ से आए? इसका जवाब शायद है पानी। और ये पानी पृथ्वी के ऊपर कहाँ से आया? इसका जवाब है शायद कॉमेट्स या मिटियोर। कॉमेट्स या मिटियोर के ऊपर पानी होता ही नहीं, उसके ऊपर बर्फ होता है, तो उनके ऊपर बर्फ कहाँ से आया? तो शायद। तो यहाँ सवाल बहुत जरूरी हो जाता है कि पानी हो या बर्फ हो या भाप हो, वो सब कुछ तो H2O है। तो H2O में से H और वो कहाँ से आए? तो H आया बिग बैंग से, और O क्यों? ऐसे H के साथ जो और 117 एलिमेंट्स है, कुल मिला के 118 एलिमेंट्स है। ये 118 एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में सब पढ़ते हैं, वो 118 एलिमेंट दुनिया में कहाँ से आए? इसका सीधा सिंपल जवाब है, इसका जवाब है तारों की फ्यूजन फैक्ट्री से। तारे शुरू होते हैं हाइड्रोजन नेबुला से, करते चलते 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 फ्यूजन फैक्ट्री में आयन तक एलिमेंट्स बनते हैं, आगे जाके तारों की मरने की प्रक्रिया में सुपरनोवा, हाइपरनोवा रिएक्शन से क्या बनता है? आगे के हेवी एलिमेंट्स बनते हैं, फेंके जाते हैं, वो कहीं नेक्स्ट सेकंड थर्ड जनरेशन साइकिल में आ जाते हैं। तारों के अपने वलय फेंकने की प्रक्रिया में जो प्लैनेट्स बनते हैं, उन प्लैनेट्स में उनके अवशेष अस्तित्व पाए जाते हैं। आगे जाके हाइड्रोजन ऑक्सीजन के माध्यम से पानी बना, पानी से आगे जाके कई अमीनो एसिड्स बने, और इन अमीनो एसिड से सिंगल सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर, मल्टी सेल्यूलर जीव बने, और फिर आगे जाके एक दिन इतने बड़े डायनासोर्स बने। ये डायनासोर्स भी अपने शरीर का तो विकास करते रहे,
बट मस्तिष्क का विकास न करने के कारण नेचर की कोई छोटी सी या बड़ी सी हल्की सी विपदा आपदा में कहीं के नहीं रहे, दे गॉट एक्सटिंक्ट। तो भाई ये डायनासोर्स कहीं नेचुरल प्रक्रिया में एक्सटिंक्ट हो गई, और उस प्रक्रिया के खत्म होने के बाद जब पृथ्वी के ऊपर रहने लायक माहौल हुआ, तो उस उत्क्रांति के साइकिल ने फिर से जोर पकड़ा, और उस जोर ने कहीं ये जीव जो आपके सामने दिख रहा है वो उत्क्रांत हो रहा था। और इस जीव के पास तो ना डायनासोर की तरह बड़ा शरीर था, न शेर की तरह पंजे थे, न मछली की तरह पानी के नीचे छुप सकता था, न पंछी की तरह हवा में उड़ सकता था। खुद को बचाता कैसे, ये समझने की सोच उसमें आई, यही बड़ी बात है। क्योंकि जैसे ये समझने की सोच उसमें आई, वैसे उसने अपने हाथ पांव के साथ अपने एक और इम्पोर्टेंट ऑर्गन का इस्तेमाल चालू किया, जिसको हम सर बोलते हैं, और सर के अंदर के मस्तिष्क का विकास होने लगा, और इस्तेमाल किया तो और विकास होते गया। होते 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 उसने व्हील बना लिए, आग को काबू में कर लिया, खेती बाड़ी करना चालू कर लिया, घर बनाए 15,000 साल पहले, कहीं ना कहीं 200 साल पहले मशीनें बनाई, कहीं ना कहीं 60 साल पहले कंप्यूटर बनाया, 30 साल पहले मोबाइल बनाया, और आज उस टेक्नोलॉजी के कारण वो जीव पूरे दुनिया पे राज करता है। ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं, बट पूरे दुनिया को उसने अपने मुट्ठी में ले लिया है, कॉन्टेक्टिबल बना दिया। द वर्ड हैज कन्वर्टेड टू द स्मॉल विलेज, ये हम बोलते हैं ना, तो ये यही है कि हमने सबको कॉन्टेक्टेबल कर दिया। इवन हम अपने से बाहर, पृथ्वी से, सोलर सिस्टम से बाहर जाके कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे। ये सारे मिरेक्युलियस वर्क, मतलब आश्चर्यजनक काम इंसान कर पाया, किसकी कृपा से? किसी की कृपा से नहीं, खुद की क्यूरियस दिमाग से, खुद की बेपनाह मेहनत करने की क्षमता से, और पीढ़ियों से ये मेहनत इंसान करते आ रहा है, और उसके चलते ही बहुत सारे ना मेहनत करने वाले इंसान अपनी पोटली भर रहे हैं। तो इसलिए जिंदगी में सही मायने में अगर आपको किसी की इज्जत करनी है, तो आपको इज्जत करनी है मेहनती, प्रामाणिक, अनुशासन प्रिय लोगों की, जिनका मजहब होता है अपने देश की कॉन्स्टिट्यूशन और अपने देश के प्रति वफादार रहने वाले। इन लोगों की आप इज्जत करना चालू करो। पैसे वाले और गलत कामों में उलझे हुए लोगों से दूर रहो, उनको वोट मत दो, करप्ट लोगों को तो कभी वोट मत दो। ये मैं छाती ठोक के बोल सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर मेरे ये बोलने से मेरे ऊपर कोई धारा नहीं। तो जरूरी चीज यहाँ ये है कि सपोज ये सब इंसान ही किया, तो इंसान ने ये सारी जो रिसोर्सेस है वो कहाँ से लाए? वो ऑब्वियसली धरती से लाए, मदर अर्थ से लाए। बट मदर अर्थ को बचाना मतलब मदर अर्थ की पूजा करना नहीं होता। मदर अर्थ को बचाना मतलब नेचुरल रिसोर्सेस को बचाना। कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेस इज द फोरमोस्ट फंडामेंटल ड्यूटी ऑफ एवरी ह्यूमन सिटीजन। ये करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बेवजह आपकी टॉयलेट की टंकी फ्लश नहीं करनी है, बेवजह 2 घंटे शॉवर में नहाना नहीं है, दांत ब्रश करते वक्त नल चालू नहीं रखना है। हाँ, ये छोटी छोटी चीजें, या थाली में एक चावल का दाना भी फेंकना नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अपने जिंदगी में लाए, तो आप पूरे दुनिया के लिए मार्गदर्शक बन सकते हो, और फिर देश विश्व गुरु बन जाएगा। कोई गलत तरीके के धार्मिक अनुष्ठान करके देश विश्व गुरु नहीं बन सकता। इतनी समझ आजकल के पॉलिटिकल लीडरशिप में नहीं है, तो वो उनका प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल लीडरशिप आती जाती रहती है। जरूरी है कि हम अपने आप को इस मकाम पे लाए कि जिससे देश के बारे में सोचते वक्त कोई भी ये सोचे कि यहाँ का आम आदमी समझदार, लायक, प्रामाणिक और इंसानियत से प्यार करने वाला है। जरूरी चीज यहाँ ये है कि अगर इंसान पे हमें सचमुच इंसान की हमें इज्जत करनी चाहिए, तो यहाँ जरूरी चीज समझने की, ये जो जिनकी इज्जत करनी है, ऐसे लोग किस टाइप के होते हैं और किस तरीके की सोच रखते हैं। वो इस टाइप के होते हैं कि वो किसी भी सुपर नेचुरल अवैज्ञानिक चीजों में विश्वास नहीं रखते। यहाँ मैं आपको कुछ चित्र दिखाया। ऑब्वियसली प्लैनेट्स है, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ और मार्स। मर्क्यूरी का डायमीटर 4,880 किलोमीटर, वीनस का 12,000, पृथ्वी का 12,500, मार्स का 4,500। आप बोलोगे डायमीटर क्यों गिना रहा हूं? क्योंकि आपने ही आपके आसपास किसी को सुना होगा
कि उसने अंगूठी, तावीज या कोई हाथ पांव में रस्सी या कोई पत्थर पहन लिया, बोल के कि न्यूटन के लॉ के हिसाब से उसके बाबा जी ने, अम्मा जी ने, मौलाना जी ने, कोई फादर ने, मदर ने बता दिया कि भाई अंगूठी या तावीज पहनना तो न्यूटन के लॉ के हिसाब से है। अभी न्यूटन के लॉ के हिसाब से जाओगे तो आपको मुझे बताने की जरूरत है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इज F is equal to G into m1 m2 by r square. G is a gravitational constant 6.67 into 10 raised to minus 11 mks unit और m1 m2 masses है, r is the distance between two bodies. अभी सोचिए इस प्रोपोर्शन से इन चीजों का आपने कुछ भी पहनना शुरू किया, तो ये पहनने के बाद आपने जब यूरेनस नेपच्यून की तरफ देखा तो उसमें 20-40 पृथ्वी रह सकती, शनि में 750 पृथ्वी, जुपिटर में 1300 पृथ्वी रह सकती। इनका सब कुछ हाथ पांव में पहनने के बाद मुझे लगता है हाथ पांव की उंगलियां भर जाएंगी, झड़ भी जाएंगी। फिर आपने सूरज की तरफ नजर घुमाई तो समझ में आया कि सूरज में तो 10 लाख अर्थ रह सकती। अभी सूरज का तो ट्रैक्टर का टायर पहनना पड़ेगा, ये तो आप करोगे नहीं, ना ही वो बाबा जी या मौलाना जी आपको ये बताएंगे कि समझ है वो चौथी पांचवी स्टैंडर्ड के आगे नहीं होती, क्योंकि उसके आगे उन्होंने कभी जिंदगी में स्कूल ही नहीं देखा होता। तो उनको फिजिक्स सिर्फ स्यूडो साइंस की तरह बताना आता है। स्यूडो साइंस मतलब छद्म विज्ञान, गलत तरीके से विज्ञान के दावों को बताना ताकि लोग गलत फहमी में रहे और उनको कोई एक्सप्लॉइट करे। ये छद्म विज्ञान बताने वाले भूल जाते हैं कि यहाँ जो सूरज दिख रहा है, जो दिन में दिखता है तो एक भी तारा नहीं दिखता, क्योंकि उसकी प्रभा तेज और उसकी जो इंटेंसिटी, ल्यूमिनेसिटी है, ब्राइटनेस है, वो इतनी ज्यादा है कि तारे इससे भी ज्यादा ब्राइट होने के कारण भी दिखते नहीं, क्योंकि वो दूर होते। तो कोई मुझे ये बताएगा कि जो रात में तारे दिखते हैं वो कुल कितने होते हैं, या आपकी आंखों से रात में कितने तारे देखे जा सकते हैं? प्लीज ये जवाब मत दीजिए कि अल्फानाइट, अगणित, अनकाउंटेबल, क्योंकि ये गलत जवाब। आपको शौक देने वाला जवाब ये है, जो ज्यादा पढ़ते नहीं उनको, कि रात के आसमान में आपकी खुली आंख से ज्यादा सिर्फ 5,500 से 6,000 तारे ही दिख सकते हैं इन बेस्ट क्लाइमेटिक ऑब्जर्वेबल कंडीशन। अभी ये जो शौक लगा इसको मैं थोड़ा आगे कंटिन्यू करता हूँ कि ये 5,500-6,000 तारे सूरज से कई गुना बड़े हैं। उदाहरण के तौर पे 2-3 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे सूरज दिखाया, बाजू में व्याध दिखाया जो रात के आसमान का सबसे ब्राइट तारा, ओल्यूक्स दिखाया जो व्याध से 10-20 गुना बड़ा है, स्वाति यानी आर्कटुरस, स्वाति नक्षत्र का तारा प्रोल्यूक्स से 10-20 गुना ज्यादा बड़ा है। फिर मैंने आपको बेटलग्यूस यानी एकाक्षी, ज्येष्ठा मतलब एंटेरस दिखाया जो सूरज से करोड़ों करोड़ों गुना बड़ा। इनका कुछ भी पहनना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, बट उसमें जाएंगे नहीं। अभी समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो 5-6 हजार तारे रात को दिख सकते हैं, उसमें से 5-6 तारे मैंने आपको दिखाए। तो आपको बचपन से ये क्यों पढ़ाया जाता है कि इनफाइनाइट अनकाउंटेबल तारे हैं? बेसिकली बताने का उद्देश्य ये रहता है कि बहुत सारे तारे, बट नथिंग इज अनकाउंटेबल। इस उक्ति के आधार पे पार्शियली वो स्टेटमेंट सही है, क्योंकि हमारे सूरज के गांव में ही, इस गांव में 200 बिलियन सोलार सिस्टम है। आप बोलोगे कहाँ, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है, तो मैं दिखाने के लिए बता दूं पहले कि इसका नाम है मंदाकिनी दीर्घिका, मिल्की वे गैलेक्सी। बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको एक नीला सर्कल दिखे। इस नीले सर्कल को ऊपर नीचे मैंने चिपका दिया थोड़ा बड़ा करके, ताकि आपको दिखे कि सोलार सिस्टम या सूरज आपको दिख रहा है। नहीं, वो सोलार सिस्टम का लोकेशन आपको दिख रहा है। इतने बड़े से तारों के जमावड़े के अंदर सोलार सिस्टम एक अननोटिसेबल बिंदु है, बट उसका लोकेशन जो जहां सूरज लिखा है वहां है। ऐसे इतने बड़े मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर सूरज जैसे टोटल 100-200 बिलियन सोलार सिस्टम या स्टार सिस्टम एग्जिस्ट करते हैं। तो ऑब्वियस सवाल आपके दिमाग में आएगा कि ये पूरे सिस्टम का डायमीटर कितना है। सोचिए ये जो नीला सर्कल मैंने ऊपर नीचे चिपकाया है आपके मोबाइल स्क्रीन में, उसमें आप ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ट्रैवल करने की कोशिश कर रहे हो, और उसके लिए आप मोटरसाइकिल इस्तेमाल कर रहे हो। तो मोटरसाइकिल के स्पीड से तो 40 किलोमीटर 1 घंटे में जाओगे, कार से 60-70, ट्रेन से, और हवाई जहाज से जाओगे तो 1,000-1,500 किलोमीटर 1 घंटे, स्पेस शटल से जाओगे तो शायद 60-70 हजार किलोमीटर 1 घंटे में जाओगे। उसका मतलब 16 से 17 किलोमीटर 1 सेकंड में जाओगे। इस स्पीड से आप पृथ्वी का एक चक्कर 45 मिनट्स के अंदर लगा सकते हो। बट 16 से 17 किलोमीटर पर सेकंड की जो स्पेस शटल की रफ्तार है वो रोशनी यानी लाइट के स्पीड के सामने बहुत ही शुमार, मतलब बहुत ही एवरेज, छोटी है क्योंकि लाइट का स्पीड है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। इस रफ्तार से पृथ्वी के 7.5 चक्कर 1 सेकंड में मारे जा सकते हैं।
इस लाइट को मैंने एक छोर पे रखा, दूसरी छोर पे उसको जाना है, कितना समय लगेगा पूछा तो लोगों ने जवाब दिया 5 सेकंड, 5 मिनट, 5 घंटा, 5 साल, 50 साल। सारे जवाब ऑब्वियसली गलत है, क्योंकि इस गैलेक्सी के एक एंड से दूसरे एंड जाने के लिए प्रकाश की गति से भी 1 लाख साल लगते हैं। अपनी गैलेक्सी का डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष है, मतलब किलोमीटर में है। 1 लाख इंटू 365 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60 इंटू 3 लाख। जवाब आएगा एक के ऊपर 18 जीरो। इतना किलोमीटर डायमीटर अपनी मिल्की वे गैलेक्सी का है। तो आप पूछोगे सर एक ही गैलेक्सी है क्या, तो मैं बोलूंगा नहीं, इसमें तो इसके बगल में भी एक गैलेक्सी है, नाम है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी में 100-200 बिलियन स्टार सिस्टम नहीं है, बल्कि 300-400 बिलियन स्टार सिस्टम है। डायमीटर 1 लाख प्रकाश वर्ष नहीं है, 1,80,000 प्रकाश वर्ष है। आप बोलोगे दो ही गैलेक्सी है क्या, तो जवाब में मैं बोलूंगा नहीं, यहाँ दिखने वाला हर बिंदु एक गैलेक्सी है। तो आप बोलोगे क्या बात कर रहे हो, तो हमारी वाली है क्या। एक रेफरेंस के तौर पे मैं आपको एक दिखाना चाहूंगा कि अगर आपकी गैलेक्सी इस चित्र में दिखती तो कैसे दिखती। सोचिए, मैं बड़ा करते जा रहा हूँ, बड़ा करते जा रहा हूँ, बड़ा करते जा रहा हूँ। मैंने कहीं लाके इसको रोका और बोला कि जो नीचे वाली बड़ी गैलेक्सी दिख रही है, ओके, उस नीचे वाली बड़ी गैलेक्सी को बोलिए मिल्की वे गैलेक्सी, जिसका डायमीटर है 1 लाख प्रकाश वर्ष। ऊपर वाली गैलेक्सी सोचिए एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, जिसका डायमीटर है 1,80,000 प्रकाश वर्ष। दो गैलेक्सी के बीच की दूरी है 22 लाख प्रकाश। मिल्की वे और एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बीच की दूरी है 22 लाख प्रकाश वर्ष। फिर से आपको समझ में आए इसलिए छोटा करते जाता हूं, ताकि समझ में आए कहां से शुरू किए थे कहां गए। अभी सोचिए, ये है आपका गैलेक्सी का जमावड़ा जो आसमान में है। आप बोलोगे कहाँ है या आसमान का कितना बड़ा हिस्सा है, ये जानने के लिए आप सोचिए, आप फुल मून मतलब पूर्णमासी की रात को आपके गैलरी में बालकनी में बैठे हो और सामने वाले दिखने वाले पूरे चंद्रमा के आपने 10 इक्वल हिस्से किए। 10 इक्वल हिस्से करने के बाद जो 1/10 वाला एक हिस्सा आपके हाथ में आया, उसको आपने आसमान में ही रखा वही के वही, और उसके पीछे हुए छुपे हुए आसमान का आपने बढ़िया टेलीस्कोप से फोटो निकाला। टेलीस्कोप का नाम है हबल स्पेस टेलीस्कोप। इससे आपने 1/10 वाले मून के पीछे वाले आसमान का फोटोग्राफ 24 घंटे के एक्सपोजर से निकाला, तो आपको ये चित्र मिला जो आपके सामने मैंने रखा। तो आप बोलोगे कि मतलब 1/10 वाले मून के पीछे वाले आसमान में 3-3.5 हजार गैलेक्सी छुपी पड़ी है, और आजू बाजू की दोनों गैलेक्सियों में 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी है। तो मैं बोलूंगा एब्सोल्युटली राइट। तो फिर से आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि 1/10 ऑफ द मून के पीछे अगर इतनी गैलेक्सी है, तो पूरे आसमान में कितनी गैलेक्सी है। मैं जवाब दूंगा 100-200 बिलियन गैलेक्सी। आप बोलोगे इतना बड़ा है यूनिवर्स, तो मैं बोलूंगा कि ये तो पिक्चर की शुरुआत है, टेलर है। एक्चुअल पिक्चर तो ये है क्लाइमैक्स में कि ये 100-200 बिलियन गैलेक्सी इस ब्रह्मांड का 5% विजिबल मैटर, 95% इज डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी। डार्क मैटर मतलब ब्लैक होल जैसी चीजें, डार्क एनर्जी मतलब हबल लॉ के हिसाब से जिस एनर्जी से इस ब्रह्मांड का प्रसरण यानी एक्सपांशन हो रहा है। आप समझे बात को। इतने बड़े ब्रह्मांड के बारे में इंसान ने छोटे से मस्तिष्क का सालों से इस्तेमाल करते उसमें प्रावीण्य मतलब एक्सपर्टीज हासिल करते करते आज हम जिस मकाम पे पहुंचे हैं, इसमें कोई भी सुपर नेचुरल चीज नहीं है। सब कुछ डिस्कवरी बेस्ड है, समथिंग एग्जिस्ट देयर। हमको सिर्फ विज्ञान, तंत्र ज्ञान और हमारे मस्तिष्क के इस्तेमाल से उसको ढूंढना है। एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्कवरी। ढूंढ के निकालने के लिए आपको आपका वक्त कहीं लाइन में खड़े रह के किसी के ऊपर से ग्रेस या ब्लेसिंग या दुआ की अपेक्षा में वक्त नहीं गंवाना चाहिए। आप आपके लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए, देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, क्योंकि ह्यूमन माइंड के लिमिट्स आर स्टिल अनएक्सप्लोर्ड। ऐसे हालत में मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्लीज 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 प्रामाणिक मेहनती इंसानों की कदर और इज्जत करिए। नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए जान लगा दीजिए, बट खुद को काबिल इतना बना दीजिए कि आपको हमेशा ही विज्ञान और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जीने में कोई बाधा न आए, और आए भी तो आप उसको पार करने में सक्षम बने। अगर मैं बोलूं कि इससे बढ़िया और इंटरेस्टिंग पार्ट आगे है,
जो कभी मैं आपके यहाँ आऊंगा तो स्काई ऑब्जर्वेशन के द्वारा दिखाऊंगा। ये स्काई है। पोल स्टार को कैसे पहचानना है, तो सप्तर्षि मतलब द ग्रेट बियर और अर्सा मेजर और कैसियोपिया मतलब शर्मिष्ठा के माध्यम से पहचान सकते हैं। यहाँ पे मैंने ओरायन द हंटर यानी मृग दिखाया है। उस मृग के अंदर छुपा हुआ ओरायन नेबुला यहाँ दिखा रहा हूँ, जहाँ पे तारों का जन्म होते हुए वैज्ञानिकों ने देखा है। यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी का लोकेशन है, जो दिखने में ऐसी है, बट 22 लाख प्रकाश वर्ष की दूरी पे होने के बावजूद भी नेकेड आई से देख पाते हैं हम लोग। ये सारी चीजें बच्चों को पता होना जरूरी है, ऐसा नहीं, बट सारे स्टूडेंट को, सारे इंसानों को, भारत के हो या कहीं के, सबको पता होना चाहिए कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करोगे तो भारत जैसे देश में दुनिया की 17 से 18% आबादी है, बट रिसर्च कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज वेरी लेस, इवन लेस देन 1%। ये हालात कुछ ज्यादा ही सराहनीय नहीं है। इससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होनी चाहिए कि क्यों हम नहीं कर पा रहे जो छोटे छोटे देश बाहर कर पाते। तो जब आप अपने गिरेबान में झांक के देखोगे, जब आपके परिवार में देखोगे, जब आपके समाज में देखोगे, तो जरूर समझ में आएगा कि गलती एक की नहीं अनेकों की है और सालों से चलती आ रही है। आज ज्ञान के भंडार खुले हुए हैं इंटरनेट के माध्यम से, फिर भी लोग दूसरों को दोष देते हैं कि हमें ज्ञान नहीं मिलता, हमको ये नहीं मिलता, हमको वो नहीं मिलता। इस तरीके की अपाहिज मेंटेलिटी जो है वो भारत को विश्व गुरु बना नहीं सकती। ये आप पक्का दिमाग में डाल दीजिए। अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो आपके लिए ऋणालेख है, कभी विजिट करिए। अगर मेरा लेक्चर पसंद नहीं आया तो कहाँ पे गालियां भेजनी है उसके लिए ये व्हाट्सएप नंबर मेरा। अगर अच्छा लगा तो थैंक यू सिर्फ आपके टीचर्स को, स्पेशली चंद्रशेखर पटेल सर को, क्योंकि उन्होंने काफी कांटेक्ट किया मुझे। सिर्फ कुछ चीजें आप लोगों को ऑनलाइन वेबिनार्स में समझ नहीं आती कि बिफोर वेबिनार यू कैनॉट कॉन्टेक्ट मी, क्योंकि मैं ही ये सब अरेंजमेंट करता हूँ। तो आपने कांटेक्ट किया, कॉन्टेक्टेबल नहीं था मैं, क्योंकि मेरे पास सारे लेक्चर मोबाइल से होते हैं, मैं गांव में रहता हूँ आज भी, तो मेरे पास भी अपनी दिक्कतें हैं। ये सब मैनेज करके 6:15 बजे ऑफिस से आके मैं 6:30 बजे लेक्चर लेता हूँ, दिन की 12 घंटे की मेहनत के बाद, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कुछ चीजें जरूर समझ में आनी चाहिए कि व्हाट इज शुड बी द प्रिपरेशन फ्रॉम योर एंड। तो एनीवेज, आपने ये इतना बढ़िया अरेंजमेंट किया, एटलीस्ट पॉजिटिवली एक 150 बच्चे और अभी 100 तक बच्चे हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। आपके चैट बॉक्स में एक लिंक डाली गई है जहां पे अच्छा लगा, इसका फीडबैक डायरेक्टली आप गूगल पे दे सकते हो। 1 स्टार मतलब खराब लेक्चर, 5 स्टार मतलब अच्छा लेक्चर। और पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट का आजकल बड़ा रोल है, फ्री में ही मिलता है इंटरनेट पे, तो हमने भी एक लिंक जनरेट की है, वो लिंक भी आपको डाली गई है, और इसको भी आप कांटेक्ट मतलब हिट करके आप गूगल फॉर्म भर के पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट ले सकते हैं। तो आज के व्याख्यान का इम्पोर्टेंट मैसेज ये है, खुद पे विश्वास करिए, माँ बाप की, टीचर्स की इज्जत करिए, जो आपको डिसिप्लिन सिखाते हैं, समय सूचकता सिखाते हैं, उनको तो जरूर रिस्पेक्ट करिए। इनके बोलने से आपका जो जिंदगी में फायदा होगा वो एक्चुअली उनका नहीं होने वाला है, सिर्फ आपका होने वाला, आगे जाके देश का होने वाला। तो उनके इस जज्बे को, कुर्बानी को आप समझिए। इस लेक्चर की जहां तक बात है तो मुझे आपसे ज्यादा कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, जस्ट एक्सपेक्टेड है कि आप फीडबैक दें ताकि मैं अपने में कोई बदलाव ला सकूं। दूसरी चीज है, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट में इंटरेस्ट है तो वो ले लीजिए। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इन केस यू वांट सम एडिशनल लेक्चर्स, एवरीथिंग फ्रॉम माय एंड इज फ्री। फिर वो यूपीएससी का गाइडेंस हो या फिर वो एकेडमिक की क्लासेस हो, ऑनलाइन चीजें हम पढ़ाते हैं, मैं और मेरी टीम, जो मेरे पैसे से चलती है। बट मुझे जो सैलरी आती है मुझे उसका कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं समझ में आता। मुझे लगता है कि एजुकेशन से ही दुनिया में वर्ल्ड पीस लाई जा सकती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाई जा सकती है। इस साल के साइंस डे का थीम ही था कि इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उसके ऊपर तो सेपरेट लेक्चर हो सकता है, बट टुडे after extending my warm regards and thanks to your teachers team and taking, अगर लेक्चर में कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो उसमें टीचर्स की या मैनेजमेंट की बिल्कुल गलती नहीं है। मैंने अपने रिस्क पे मुझे जो सही लगता है वो बोला, तो सारी जिम्मेदारी मेरी है। बट लेक्चर ऑर्गेनाइज उन्होंने किया तो क्रेडिट ऑब्वियसली आपके टीचर्स का, कॉलेज का और मैनेजमेंट की टीम का और प्रिंसिपल सर का और चंद्रशेखर पटेल सर का है। ये बोल के मैं यहाँ रुकता हूँ। प्लीज फीडबैक दीजिए, पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट लीजिए, और व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे आप जुड़े रह सकते हो। कभी भी कॉल नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको मुझे व्हाट्सएप मैसेज से आपके सवाल भेजने।
तो यहाँ पे मैं रुकता हूँ। चंद्रशेखर पटेल सर, यू कैन प्रोसीड विद द नेक्स्ट एक्टिविटी। आई गॉट सम अनदर असाइनमेंट, सो यू हैव गॉट ओनली 2-3 minutes टू कंटिन्यू। थैंक यू। थैंक यू सर। आज के नेशनल वेबिनार अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स विद साइंटिफिक टेम्परामेंट को सफल बनाने के लिए मैं सर्वप्रथम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा श्री संतोष तोगाले सर, सीनियर साइंटिस्ट ऑफ बार्क मुंबई जी को, जिन्होंने अपने अनुभव और ज्ञान को हमें और हमारे छात्र छात्राओं के बीच साझा किए और संबंधित विषय पर गहन रूप से प्रकाश डाले और हमको अवैज्ञानिकता से वैज्ञानिकता की ओर जाने के लिए प्रेरित किए। तत्पश्चात हमारे महाविद्यालय के चेयरमैन सर श्री गौतम चौधरी सर को धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में यह वेबिनार सफल हुआ एवं इस तरह का आयोजन हम सर के मार्गदर्शन में आगे भी करते रहेंगे। इनके पश्चात हमारे महाविद्यालय के अनुभवी प्राचार्य सर डॉक्टर गोमती सिंह जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनके दिशा निर्देश से यह वेबिनार सफल हुआ। इसके साथ ही इस नेशनल वेबिनार को सफलता के लिए सहायक प्राध्यापक श्री गोपाल श्रीवास्तव सर जी को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने इस नेशनल वेबिनार को सफल बनाने के लिए हमें विशेष मार्गदर्शन प्रदान किए। इस वेबिनार के सहसंयोजिका सुश्री नीलिमा विशाल मैम को भी मैं धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग से यह वेबिनार सफल रहा। इनके साथ हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट श्री संजय श्रीवास्तव सर को भी धन्यवाद देता हूं, जिनके सहयोग के बिना हमारा यह प्रोग्राम होना संभव ही नहीं था। अंत में मैं उन सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं, सभी पार्टिसिपेंट को, जिन्होंने इस वेबिनार में अपनी सहभागिता दिखाई, और इसी के साथ में इस वेबिनार के समापन की घोषणा करता हूँ। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। आई विल क्लोज इन 2-3 minutes। जो अभी नए आए हैं उन लोग फीडबैक लिंक पे हिट करके फीडबैक दीजिए। सभी लोग फीडबैक फॉर्म फिलअप कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है मैसेज बॉक्स पर। आफ्टर गिविंग फीडबैक यू कैन लीव द कॉल। 2 मिनट बाद हम ये मीटिंग बंद कर देंगे, बट जो लोग अभी प्रेजेंट है वो चैट बॉक्स में लिखी हुई दी हुई फीडबैक लिंक के ऊपर फीडबैक दे के आप इस मीटिंग को छोड़ सकते हैं। आपने पार्टिसिपेट किया, इसलिए तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू।